today we are going to start our next lecture of nuclear physics, which is natural radioactivity. How this natural radioactivity was discovered and which one discovered by radioactivity. Natural radioactivity was discovered by Henry Becquerel in 1896 when he found that the double salt of uranium and potassium uranyl sulfate. One thing you should keep in mind, uranium along with double salt of potassium uranyl sulfate produces a dark spot on the photographic plate, which indicates that there are some sort of particular radiation emitted out from these elements, from these compound of uranium sulfate, and produces a dark spot on the photographic plate. In 1898, later on, 2 years later on, 1898, Pierre Curie and Marie Curie confirmed that along with uranium, other than uranium, thorium salt, polonium and radium also emitted the same radiation which were emitted by uranium and produces similar spots on the photographic plate as does by uranium. In 1899, Rutherford confirmed that if certain kind of radiations are emitted out from some heavier element, nuclei of heavier element, what will be the nature of these emitted radiation? So Rutherford discovered that along with these emitted radiation, one radiation carry charge particle, positive charge particles given the name alpha radiation, and the radiation which carry negative charge particle given the name beta radiation. तो यहाँ आप ये चीज़ ज़हन में रखें, बैकरल, पियर क्यूरी और मैरी क्यूरी, इन तीनों ने सिर्फ ये बताया कि हैवियर एलिमेंट की न्यूक्लियाई से पार्टिकुलर किस्म की रेडिएशन एमिट होती है. द फिनोमिना ऑफ emission of radiation, phenomena, the spontaneous emission of radiation due to disintegration of nuclei of heavier element is called natural radioactivity, and the element which obey these radiations are called radioactive elements. So radioactivity का जो concept है जिसमें radiation का emit होना, ये concept first of all हेनरी बैकरल ने दिया. फिर उसके बाद लेटर ऑन मेयर क्यूरी और पियर क्यूरी ने कहा कि बैकरल कह रहा है कि यूरानियम जो है पार्टिकुलर किस्म की रेडिएशन एमिट करती है, तो उन्होंने 3 अदर एलिमेंट्स इस सीरीज में डिस्कवर कर लिए जो कि थे पोलोनियम, रेडियम एंड थोरियम साल्ट. तो ये नहीं बता सके कि ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है इनकी नेचर क्या है. ये जो हम लोग अर्ली क्लासेस में एफएससी लेवल पे या अर्ली मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं अल्फा बीटा गैमा रे, तो तीनों किस्म की जो रेडिएशन है जो बाय नेचर डिस्कवर्ड हुई है वो लेटर ऑन डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया. जिस तरह रदरफोर्ड कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैरी करने वाली रेडिएशन है न्यूक्लियस से एमिट होने के बाद वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं. और इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाली रेडिएशन है वो कौन सी है, वो बीटा रेज है. और इसके एक पर्टिकुलर रीजन है, अल्फा रेडिएशन आफ्टर एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, एंड लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड doubly positive charge of helium nuclei. Alpha rays are double positive charge of helium nucleus, and similarly inside the nucleus when a neutron decay into proton or proton decay into neutron, and as a result beta negative and beta positive rays are also emitted out from same nuclei. तो इसका सेपरेट रीजन है कि बीटा रेज क्यों एमिट हुई, किस वजह से हुई. तो बीटा रेज का सिंपल आप इस स्टेज पे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, आप ये याद रख लें कि बीटा रेज क्या है, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन और डिके ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन. इसी तरह इन 1909 आफ्टर ऑलमोस्ट 12 to 13 years Willard confirmed that another radiation are also emitted out from nuclei which is unaffected by the presence of electric and magnetic field called gamma rays. Gamma ray are electromagnetic radiation, carry no charge, having rest mass is equal to 0.
So the concept of gamma rays was indicated by Willard in 1909. तो इस तरह ये पता चला कि बैकरल, पियर क्यूरी और पियर क्यूरी सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुछ हैवियर एलिमेंट के न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो सेल्फ डिके होते हैं। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन के बाद वहाँ से क्या होता है, एक पर्टिकुलर किस्म की रेडिएशन इमिट होती हैं। इन इमिटेड रेडिएशंस को क्या कहा जाता है, इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का नाम दिया गया है। और ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के नाम से इनको पुकारा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियाई जो है हैवियर एलिमेंट की जो न्यूक्लियस हैं, जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिके होते हैं, तो रेडिएशन इमिट होती हैं। तो इट वुड मीन दैट हैवियर न्यूक्लियाई ऑफ हैवियर एलिमेंट आर फाउंड टू बी अनस्टेबल इन नेचर। व्हाई दे आर अनस्टेबल इन नेचर, व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका बहुत सारे डिफरेंट रीजन है। तो एक दो स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपको बताता हूँ। टू काइंड ऑफ फोर्सेस आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स and second one is Coulomb repulsive force between protons. हैवियर एलिमेंट में जब प्रोटॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो जाती है, प्रोटॉन डेंसिटी, तो प्रोटॉनों के दरमियान जो म्यूचुअल कूलम रिपल्सिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर डोमिनेट होती है। जब म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस डोमिनेट होगी ओवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, तो जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर ऑसिलेशन डेवलप होती है। न्यूक्लियस की शेप भी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, आइदर वो वर्टिकली वाई एक्सिस के अलावा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा उसकी शेप में डिफॉर्मेशन आती है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट्स टू लिव इन द स्टेबल स्टेट। हर कायनात में हर चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, जिस तरह सिंगल एटम स्टेबल रखता है। तो ये जो न्यूक्लियस है जिसमें दो फोर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, कूलम रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट रोल प्ले करती है, वो न्यूक्लियाई को बाय की तरफ आउटवर्ड न्यूक्लियस वॉल्स के ऊपर एक पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करती है, जिससे न्यूक्लियाई आउटवर्ड पुल होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगी और इस डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस डिके होना स्टार्ट कर जाता है। दिस disintegration of nuclei of heavier element is called radioactivity। तो एज ए रिजल्ट अल्फा बीटा गैमा रेज रेडिएशन की शक्ल में एमिट होना स्टार्ट करती हैं। और तो जब कोई भी न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस अल्फा रेज एमिट करता है, तो हम जानते हैं कि अल्फा रेज कैरी डबल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। एज ए रिजल्ट उसका चार्ज नंबर 2 टाइम रिड्यूस होता है और मास नंबर 4 टाइम रिड्यूस होता है। वो एलिमेंट, द एलिमेंट विच emit radiation either alpha, beta or gamma rays is called parent element. And after the emission of alpha, beta or gamma ray, the new element formed is called daughter element, and this process is called transmutation of elements. Transmutation of element यानी अगर आपके पास एक सैंपल है, लेट्स सपोज रेडियम है, रेडियम यूरानियम है, लेट्स सपोज यूरानियम है 92-238, तो यूरानियम जब अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो पेरेंट्स यूरानियम हो गया, तो अल्फा पार्टिकल के इमिट होने के बाद जो न्यू एलिमेंट बनेगा डॉटर एलिमेंट वो थोरियम होगा। इसी तरह थोरियम फर्दर डिके होगा, माइट भी थोरियम बीटा डिके करता है, तो अब बीटा डिके होने के बाद जो नया बनेगा वो प्रोटेनियम होगा। इस तरह ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट क्या होती रहेगी, ये टेक प्लेस होती रहेगी अंटिल वी गेट द स्टेबल प्रोडक्ट। और स्टेबल प्रोडक्ट हमें ये यूरानियम सीरीज जो है ना, यूरानियम से एलिमेंट डिके होते होते आपको एंड प्रोडक्ट में लेड तक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेड 82-208, चार्ज नंबर 82 और मास नंबर 208। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जारी रहता है। प्रेजेंटली ये देखा गया है कि 160 न्यूक्लियाई जो हैं वो अल्फा एमिटर है, यानी जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं, न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो अल्फा एमिटर है 160 के करीब। अब ये भी ज़रूरी है कि एक एलिमेंट जो है उसके न्यूक्लियस से अल्फा एमिट होता है तो उसके बाद बीटा। फ्यू
nuclei of elements emit several groups of alpha particles. Like radium emitted two group of alpha particles. Radium emitted two group of alpha particle in which 95% of emitted alpha particle have kinetic energy 5.68 MeV. And remaining 5% of emitted alpha particle have kinetic energy 5.44 MeV. So it would mean that there is not a particular range of kinetic energy of alpha particle after emitted from the parent nucleus. The possible range of kinetic energy of alpha particle varies from 4 MeV to 10 MeV with half-life 10 power minus 6 seconds up to 10 power 10 years. It would mean that a certain nucleus can emit alpha particle after 1 microsecond or up to an interval of 10 billion years. 10 power 10 years mean 10 billion years. यानी जितनी भी हैवी न्यूक्लियाई हैं जब वो अल्फा पार्टिकल एमिट करती हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम एमिटेड अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म हो, सेम हो. Few radioactive substances emit alpha particle having kinetic energy like 4 MeV to 5 MeV, and few heavy nuclei emitted alpha particle having kinetic energy vary from up to 9 MeV to 10 MeV. ऐसा क्यों होता है कि जितने भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई से, उनकी डिसइंटीग्रेशन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं है बल्कि वो वेरी करती है. वजह कि अल्फा पार्टिकल आपने कहा कि ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है जिसके पास 2 प्रोटॉन हो 2 न्यूट्रॉन है, चार्ज नंबर 2 मास नंबर 4 है. अब शेल स्ट्रक्चर या शेल मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ये बताता है कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट होगा तो न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट स्टेट्स होंगी, डिफरेंट शेल्स होंगी, डिफरेंट डेप्थ्स होंगी, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स ने पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम से एक्सप्लेन किया है. अब उस पोटेंशियल वेल के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल बॉटम स्टेट से क्लोज शेल से एमिट होकर बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, और वो अल्फा पार्टिकल जो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल से एमिट होकर बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी. तो ये इमिशन कुछ इस तरह है जिस तरह इलेक्ट्रॉन एटम से इजेक्ट होता है. तो वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट में होती हैं, वो मोस्ट बाउंड्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और उनको एमिट करने के लिए मैक्सिमम वर्क या इनपुट काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है. और वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल्स में होती हैं, वैलेंस शेल्स में होती हैं, लूजली बाउंड होती हैं, उनको एमिट करने के लिए कम एनर्जी या कम वर्क डन चाहिए होता है. तो इस तरह इट वुड मीन दैट कि एटम्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट क्वांटम स्टेट से एमिट होना ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है, वेरी करती है. तो इस तरह अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की डिफरेंट डेप्थ से, डिफरेंट शेल से, डिफरेंट स्टेट से एमिट होकर आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, वेरी करेगी. इसलिए जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन की गई है कि possible range of the kinetic energy of alpha particle after emitting from radioactive nuclei vary from 4 MeV to 10 MeV. Is it clear? Yes, sir. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना. अब ये जो अल्फा पार्टिकल जिन न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं उनकी अपनी एक लाइफ टाइम होती है. ये हम लेटर ऑन डिटेल में हाफ लाइफ का कंसेप्ट स्टडी करेंगे. बहरहाल हाफ लाइफ टाइम में हल्की सी डिफाइन कर देता हूँ कि द टाइम इन विच number of radioactive substance reduces to half of its present value. तो जो अल्फा वेल नोन अल्फा एमिटर है, तो यहाँ उसने एक ऑब्जर्वेशन की है कि जो अल्फा एमिटर है तो अल्फा पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस से एमिट होता है तो हाफ लाइफ वेरी करती है 10⁻⁶ सेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड. और कुछ इतने स्टेबल है, यानी कुछ न्यूक्लियाई इतने स्टेबल है कि वहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो कितने टाइम बाद, 10⁻10 ईयर्स. 10⁻6 मिलियन है, 10⁻9 बिलियन है, तो 10⁻10 बिलियन ईयर्स के बाद. तो इस तरह ये हाफ लाइफ भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की क्या होता जा रहा है, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती जा रही है. वो हाफ लाइफ के उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे कि हाफ लाइफ क्या है. अच्छा, अब आते हैं कि ये जो फिगर्स है इसमें
रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस को कम्प्लीटली बताया गया है। ये आपकी अर्ली क्लासेस में मैट्रिक लेवल एफएससी लेवल में भी है कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ब्लड ब्लॉक है, जिसके अंदर रेडियो आइसोटोप रखा हुआ है। रेडियो आइसोटोप जो रेडियोएक्टिविटी को इमिट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट है और साइडों पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, और इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई है। क्रॉस सिंबल है इसका। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट्स है, जिसको डैक्रल ने और लेटर पेयर क्यूरी ने कहा कि इवन डार्क पेपर जो है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पेपर कवर कर दिया जाए, तो ही फाउंड some sort of black spots on the photographic plate indicate that some kind of radiation is being emitted out from radioactive sample। तो यहाँ पर ये देखा गया कि 3 किस्म की effects, एक central spot unaffected by electric and magnetic field indicate that they carry no charge having an S mass equal to 0, called gamma ray, which were announced by Willard in 1909। इसी तरह alpha rays which were deflected towards cathode side indicate that they carry positive charge particles, and similarly beta negative rays which are deflected towards anode side, beside beta negative rays, beta positive positron emission, antiparticle of electrons is also emitted out during beta decay process, which we will explain in the next lectures। अच्छा, ये तो होगी रेडियोएक्टिविटी की एक हल्का सा इंट्रोडक्शन, जिसमें ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो ओरिजिनल सैंपल है, लेट्स सपोज मेरे पास इधर सैंपल है रेडियम का। अब जब रेडियम अल्फा बीटा गैमा रेज एमिट करता है, तो याद रख लें वेरी फ्यू सैंपल ऐसे हैं कि जो तीनों किस्म की रेडिएशन एमिट करते हैं। Few radioactive samples are well known alpha emitter, few are beta emitter, and very few are gamma emitter। तो यहाँ पर सैंपल आपका एक ही है, और फोटोग्राफिक प्लेट पे 3 स्पॉट्स आपने देखे हैं, 3 इफेक्ट्स आपने स्टडी किए हैं। इट मीन तीनों रेडिएशन एमिट हो रही है। तो क्या ये तीनों रेडिएशन जो एमिट हो रही है, इसका क्रेडिट रेडियम को जा रहा है? तो इसका आंसर ये है कि लेट्स सपोज रेडियम ने इनिशियली अल्फा पार्टिकल एमिट किया। जब रेडियम अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो आफ्टर द इमिशन ऑफ और रिजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब जो नया एलिमेंट बनेगा वो रेडियम नहीं होगा, वो क्या होगा? वो ट्रांसफॉर्म होके रेडॉन बन जाएगा। अब रेडॉन की ये प्रॉपर्टी होगी कि माइट भी वो बीटा एमिट कर दे, और बीटा इमिशन के बाद फिर जो नया डॉटर बनेगा वो रेडॉन नहीं होगा, वो ट्रांसपोर्टेट होके कोई न्यू सीरीज, न्यू एलिमेंट बनेगा, माइट भी वो गैमा एमिट कर दे। इसलिए ये नहीं ज़हन में रखना है कि ये रेडियम तीनों किस्म की साइमल्टेनियसली अल्फा बीटा और गैमा रेज एमिट कर रहा है। इसके अंदर क्या होता जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट होती जा रही है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब इसके बाद सेपरेटली अल्फा बीटा गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ की तरफ मैं नहीं जाता, वो आप लोग देख लें, आपकी अगली क्लासेस में है कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, दे प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन द गैसेस, पेनिट्रेशन इन ए सर्टेन मीडियम, गैस, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। इसी तरह फोटोग्राफिक प्लेट पेपर पेनिट्रेशन करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो आप देखें। हम मूव करते हैं रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ की तरफ। याद रखें कि अल्फा, कंडीशन ऑफ अल्फा, कंडीशन ऑफ बीटा और कंडीशन ऑफ गैमा, ये नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगी। ये पार्ट 1 है रेडियोएक्टिविटी का। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं और बेसिक चीज़ें देखते हैं कि रेडियोएक्टिविटी को ओबे करने में रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है। रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉज में रदरफोर्ड और सोडी, इसने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ ये कहता है, 2 ऑब्जर्वेशन थी इस लॉ की, 2 फैक्ट्स थे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब कोई एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है, तो एमिट करने वाले एलिमेंट्स को पैरेंट एलिमेंट, और जो न्यू एलिमेंट बनता है उसको डॉटर एलिमेंट। तो सर्टेन कंजर्वेशन लॉ शुड बी कंजर्व बिफोर इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड आफ्टर इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो रदरफोर्ड और सोडी डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है
sum of the mass number of parents element should be equal to the sum of the mass number of ductal elements. Sum of the mass number of parents element should be equal to sum of the mass number of ductal elements. First observation. Second observation, total charge of parents before emitting radiation should be equal to total charge of ductal elements after emitting radiation. पेरेंट्स का टोटल चार्ज और डाटल का टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, ये कंजर्व रहना चाहिए। और इसी तरह पेरेंट्स और डाटर का टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर रेडिएशन क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। अब व्हाट इज रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ, इसको समझने के लिए लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर हमने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक सैंपल डाल दिया। रेडियोएक्टिव सैंपल्स है हमारे पास, यूरानियम का, थोरियम का, रेडियम का, पोलोनियम का या कोई भी है। तो लेट इनिशियली इस सैंपल में एटम्स की जगह एट t equal to 0 the original number of atom present in the sample is n naught. At t equal to 0 the original number of atom is marked as n naught. याद रखो n naught में number of atoms at time t equal to 0. डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस सैंपल में से एटम्स डिके हो रही है। एक चीज और यहाँ पे याद रख लें कि जब पूरा सैंपल कलेक्टिवली डिके होता है, we cannot tell which particular atom decay in which particular interval of time. It is a random process. We cannot apply deterministic approach for radioactivities. Probabilistic approach है, हमें ये नहीं कहना है कि कौन सा एटम कितने टाइम में डिके हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो इमिशन हो रही है रेडिएशन की रेडियोएक्टिव सैंपल से, the emission of radiation from the nuclei of certain element is unaffected by any physical or chemical change. It is purely intrinsic nuclear properties. यानी आप फिजिकल और केमिकल चेंज ला के रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस को ना इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करके रेडिएशन रेट को इंक्रीज कर दिया ना। इसी तरह केमिकल चेंज, यानी आप उसमें आपको किसी एलिमेंट की डॉपिंग कर दो। हाँ, एक चीज है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ the spontaneous emission of radiation from nuclei of certain element। एक चीज होती है artificial radioactivity। If you have a nucleus of certain stable element and you want to fall some sort of incident particle on it as a projectile, like gamma ray photon, like fast moving electron, positron, proton, alpha particle, when any incident particle like projectile is allowed to fall on the nucleus of certain stable element, the emission of radiation takes place from that stable nucleus is called artificial radioactivity। वो something else है, या induced radioactivity, जिसमें हम किसी न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करते हैं। वो इंसिडेंट पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम उस न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियंस को ट्रांसफर करता है। न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस से आप रेडियोएक्टिविटी के प्रोसेस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये प्योरली इंट्रिंसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। तो डिके प्रोसेस स्टार्ट होता है, ओरिजिनल सैंपल t equal to 0 n naught है, तो आफ्टर टाइम t जो नंबर ऑफ एटम्स है, जाहिर डिके होने के बाद एटम की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आफ्टर टाइम t या एट एनी टाइम t द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इन द सैंपल इज कैपिटल N, या n is the number of atom present in the sample after time t। at t 0 पे n naught थे, तो after time t it might be 1 microsecond, it might be 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 month, 1 years and up to 10 or 10 years। टाइम t जो है ना, ये कोई भी टाइम हो सकता है जिसमें डिके प्रोसेस जारी है। तो रदरफोर्ड और साडी डिस्प्लेसमेंट लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक ये ऑब्जर्वेशन सामने आई है, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस is directly proportional to the original number of atoms present in the sample at time t।
that is minus dn by dt is proportional to n. We introduce negative sign because with passage of time the number of atoms decreases. So we introduce negative sign. इस negative sign को right side ले जाएं और proportionality sign remove करें तो एक constant use होता है lambda. इस lambda को कहा जाता है decay constant और disintegration constant और transformation constant. इसकी definition यहाँ से आप कर सकते हैं कि अगर n को divide कर दिया जाए, n को divide कर दिया जाए तो lambda equal to dn by dt divided by n with negative sign. तो ये रेशियो बनती है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है. The ratio of decay of radioactive substance to original number of atoms is also called decay constant. The rate of disintegration dn by dt is also called activity of the sample. इसको dn by dt को sometimes activity of the sample भी कहा जाता है. Rate of disintegration, rate of decay और activity ये तीनों नाम है, इसी नाम से पुकारा जाता है. एक डेफिनेशन ये हुई. दूसरी डेफिनेशन ये है कि अभी मैंने कहा कि ये रेडियोएक्टिविटी जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है. The probability of any radioactive substance to decay per second. The probability of any radioactive substance to decay per second is also called decay constant, disintegration constant or transformation constant. Why it is called transformation constant? क्योंकि after disintegration parents transform into new data. That is why it is also called transformation constant. अब इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड. तो n को डिवाइड कर लें dn by n, n नीचे आ जाएगा और dt लैम्डा के साथ. तो dn by n माइनस लैम्डा dt. अब इस लेफ्ट साइड के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट करें तो एग्जैक्ट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल यूज होगा. तो डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह यूज होगा कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो हमारे पास एटम की तादाद क्या थी, n नॉट. तो टाइम t के बाद एटम्स कितने हो गए, n. तो ये इंटरवल क्या बनेगा, एग्जैक्ट इंटीग्रल n नॉट अप टू n और माइनस लैम्डा ये कांस्टेंट है बाय. तो dt इंटीग्रल के अंदर आएगा 0 अप टू t. तो dn by n इसका इंटीग्रल क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ n बॉटम n नॉट ऑफ n माइनस लैम्डा इनटू t 0 टू t लेवल. अब अपर और बॉटम लेवल कट करें तो नेचुरल लॉग कैपिटल N माइनस नेचुरल लॉग n नॉट माइनस लैम्डा t. तो log a माइनस log b, ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है log a ओवर b. तो a यहाँ पर n है, b n नॉट है, तो नेचुरल लॉग n ओवर n नॉट माइनस लैम्डा t. नेचुरल लॉग को खत्म करना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. तो लेफ्ट साइड से लॉग खत्म हो जाएगा, n ओवर n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें n इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t. दिस इक्वेशन 2 इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ. इट इज वेल नोन रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ. ये इक्वेशन ये इंडिकेट करती है कि जो टाइम गुजरेगा n जो है n की तादाद, नंबर ऑफ एटम की तादाद डिक्रीज होती जाएगी. लेकिन कैसी डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी. तो इसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है कि इफ द टाइम इज टेकन along x axis and number of atoms is taken along y axis at t equal to 0, at t equal to 0 e power 0 1, e power 0 1. तो n की तादाद क्या होगी, n नॉट जो सैंपल में मौजूद थे. तो सबसे टॉप पे आ जाएगा n नॉट. और अब जो टाइम गुजरता जा रहा है तो एटम डिक्रीज होते जा रहे हैं और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कम हमें मिलेगी. तो दिस इज रेडियोएक्टिव एक्सपोनेंशियल लॉ. अब इसके बाद ये होगा कंडीशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. सेपरेट थ्योरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ये इंट्रोडक्शन का ये पार्ट 1 लेक्चर कंप्लीट.